بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی المکین الامین المتین الرؤوف الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت میں ایک بار ڈوب کر آقا انعامدار محبوب پروردگار مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کیجیے اور پڑھیے بابا سے بلند۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جو لوگ روڈ پہ چل رہے ہیں ان کو بار بار آواز دی جا رہی ہے کہ آپ آ کے پنڈال گاہ میں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ دری جو بچھائی گئی ہے، یہ میٹ جو بچھایا گیا ہے، یہ سب آپ کے ہی لیے بچھایا گیا ہے۔ آئیے اور آپ لوگ اب بیٹھ جائیے۔ گھر بولتا رہا در بولتا رہا، گھر بولتا رہا در بولتا رہا، لوٹے جو میری سرکار تو میں ہانی کا گھر بولتا رہا۔ بے شک گھر بولتا رہا در بولتا رہا، اور لوٹے جو میرے سرکار تو میں ہانی کا گھر بولتا رہا۔ اور آئے گئے شریعت سے جو حضور بار بار، تو سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، بے شک سبحان اللہ۔ سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ اور ایک شیخ سید الشہداء حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرمائی کہ تھرا گئی یزید کے سب لشکر و سپاہ، بے شک تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، ارے کب؟ جب نیزے پہ حسین کا سر بولتا رہا، بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا۔ نیزے پہ حسین کا سر بولتا رہا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام اللہ میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آج ہم اور آپ جس جگہ شرکت فرمائی ہیں، یہ شب معراج النبی ہی کی خوشی میں یہ محفل بسایا گیا ہے۔ حضرات، اب لفظ معراج میں 5 حروف ہیں، میم، عین اور را، الف اور جیم۔ جب یہ 5 کا مجموعہ اکٹھا کیا گیا تو لفظ معراج بن گیا۔ تو اب میم سے کیا مراد ہے؟ جب میم سے سوال کیا گیا اے میم تو بتا تجھے پہلے کیوں آیا، تو میم نے کہا کہ کیسے پتا چلے گا، اگر میں لفظ معراج میں نہ آتا تو کیسے پتا چلتا کہ کس کا معراج ہوا ہے۔ تو میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور جب عین سے سوال کیا گیا، جب عین کے دامن کو تھاما گیا تو عین نے کہا کہ اگر میں نہ آتا تو کیسے پتا چلتا کہ رسول اللہ کو معراج کہاں پہ ہوا ہے۔ تو عین سے مراد عرش اعظم ہے۔ اور جب را سے پوچھا گیا اے را تو بتا تو کیوں آ گیا، تو را نے کہا کہ کیسے پتا چلتا کہ رسول اللہ کو معراج کب اور کہاں ہوا ہے، تو کہ سورج کی روشنی میں ہوا ہے، کہ چاند کی چاندنی میں ہوا ہے، کہ دن میں ہوا ہے۔ را نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ پتا چلے، را سے مراد رات ہے کہ رسول اللہ کو رات میں معراج ہوا ہے۔ اور الف سے جب الف سے پوچھا گیا اے الف تو بتا تو کیوں آیا ہے، تو الف نے کہا کہ اگر میں نہ آتا تو کیسے پتا چلتا کہ رسول اللہ کا معراج کس کے ساتھ ہوا ہے۔ الف نے کہا، الف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب را سے پوچھا گیا، جب جیم سے پوچھا گیا اے جیم تو بتا تو کیوں آیا ہے، تو جیم نے کہا میں نہیں آتا تو کیسے پتا چلتا۔ کل بدعقیدے بھی کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ کو جو معراج ہوا ہے وہ روحانیت سے ہوا ہے۔ اور جیم نے یہ کہا اے اگر میں نہ آتا تو کیسے پتا چلتا کہ رسول اللہ کو جو معراج ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پہ گئے، اللہ سے ملاقات کیے، تو یہ کیسے پتا چلتا کہ روحانیت کے ساتھ ہوئی ہے یا جسمانیت کے ساتھ۔ تو جیم سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ ہوئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہیں۔
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह के रसूल आराम फरमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। हजरत जिब्रील की हिम्मत नहीं कह रही है कि आगे बढ़ूं कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करूं। तो फिर रब्बे तबारक व तआला की बारगाह में जाते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे तबारक व तआला, तेरा महबूब तो आराम फरमा है, कैसे जगाऊं। तो रब्बे तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ और मेरे नबी पाक के कदमों को बोसा दो, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाएंगे। हजरत जिब्रील आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को बोसा देते हैं। जब बोसा देते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं और कहते हैं, जिब्रील कहो क्या बात है। हजरत जिब्रील कहते हैं, ऐ प्यारे महबूब, रब्बे तबारक व तआला ने आपको अर्श-ए आज़म पे बुलाया है, आपको मेराज के लिए अर्श-ए आज़म पे बुलाया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तैयार हो जाते हैं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम बुराक लेकर के हाजिर होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी आप इस पे चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे तशरीफ फरमा होते हैं। जब बुराक पे आप बैठ जाते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक के रकाब को थाम लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो जाते हैं बैतुल मुक़द्दस में, देखते हैं अंबियाए कराम का हुजूम लगा हुआ है। अंबियाए कराम सब बसब मौजूद हैं और सब बसब मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो देखते हैं कि अंबियाए कराम सब बसब मौजूद हैं। हजरत जिब्रील से सवाल करते हैं, ऐ जिब्रील ये किस लिए मौजूद हैं। हजरत जिब्रील इरशाद फरमाते हैं, ऐ प्यारे महबूब, आपको नमाज पढ़ाना है। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पे खड़े होते हैं और तमाम अंबियाए कराम को नमाज पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान भी अच्छी तरह पता चलता है, इसलिए कि जहाँ पे चंद उलमा मौजूद हों या चंद आलिम दीन मौजूद हों जो शरीयत को भी ज्यादा समझते हो, जो तरीक़त को भी ज्यादा समझते हो, अगर वहाँ पे कोई मौजूद हो और अगर इमाम न हो तो मुसल्ला का हकदार कौन होगा। तो आओ सवाल करते हैं हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम बस्तवी साहब से, हजरत आप बताइए अगर ऐसी जगह पे उलमा इकराम मौजूद न हो तो मुसल्ले का हकदार कौन होगा। तो हजरत फरमाएंगे, जो सबसे ज्यादा शरीयत को समझता हो, जो सबसे ज्यादा जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म हो, उसे मुसल्ले का हकदार बनाया जाए। अब अगर इल्म में भी बराबरी उतर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा इल्म तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने 7 लाख ज़बानों का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अगर इल्म के बुनियाद में मुसल्ला दिया जाता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुसल्ले का हकदार बनाया जाता। अब हजरत से सवाल कीजिए, हजरत अगर इल्म में भी बराबरी उतर जाए तो मुसल्ले का हकदार कौन होगा। तो हजरत फिर कहेंगे, जिसका चेहरा ज्यादा खूबसूरत हो उसे मुसल्ले का हकदार बना दिया जाए। अगर उस चेहरे की खूबसूरती भी बराबर उतर जाए तो किसे मुसल्ले का हकदार बनाया जाए। तो हजरत फिर कहेंगे कि जिसका किरत अच्छा हो उसे मुसल्ले के लिए इमामत का हकदार बनाया जाए। अगर चेहरे की खूबसूरती भी बराबरी पर उतर जाए, अगर चेहरे की खूबसूरती की बुनियाद पे मुसल्ला दिया जाता तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुसल्ला दिया जाता। गर्ज की किसी न किसी चीज की बेशतरी सामने वाले के अंदर रहना चाहिए, उसे मुसल्ले का हकदार बनाया जाए। तमाम अंबियाए कराम सब मौजूद हैं, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक मौजूद हैं। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर इल्म के बुनियाद पे मुसल्ला दिया जाता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया जाता। अगर चेहरे की खूबसूरती के बुनियाद पे मुसल्ला दिया जाता तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया जाता। और अगर तक़वा और अगर किरत अच्छा पढ़ता हो, अगर उसे इमामत का हकदार बनाया जाए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ऐसा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कुछ इस तरह से किरत करते थे कि इंसान तो इंसान है, परिंदे भी उनकी किरत को सुनने लगते थे। और अगर जलाल के बुनियाद पे मुसल्ले का हकदार बनाया जाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया जाए। और अगर जमाल के बुनियाद पे मुसल्ले का हकदार बनाया जाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया जाए। अब मैं आपसे
आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आखिर नबी पाक को मुसल्ले का हकदार क्यों बनाया गया? तो इतने में फैसला किया, एक एक ऐसे फरिश्ते ने जिसे सैयदुल मलाइका कहा जाता है, सैयदुल मलाइका कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीनो जमील कोई नहीं है। हमने हजरत आदम के इल्म को देखा, हजरत शीश के इरफान को देखा, हजरत मूसा के जलाल को देखा, हजरत मूसा के जमाल को देखा, गर्ज की जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, आसमान के सतह को देखा, सुरैया से लेकर के तहत तक देखा। मुझे आपसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबियों वाला कोई नजर ना आया, इसीलिए मुसल्ले का हकदार नबी पाक को बनाया गया और नबी पाक ने इमामत फरमाई। और इसीलिए तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया। जब नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के फारिग होते हैं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, आका आप आगे चलिए। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, पहले आसमान पे, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, गज के 7वें आसमान तक जाते हैं। तमाम नबी पाक, तमाम अंबिया कराम से मुलाकात होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आप देख रहे हैं, आपकी निगाहें देख रही हैं, हिंदुस्तान का वो नकीब आज़म स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं, जिन्हें हम और आप नाज़िम अहले सुन्नत हजरत मोइन अख्तर साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं फकत 5 मिनट और आपके सामने रहूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से पहले से 7वें आसमान तक जाते हैं। फिर जब आप 7वें आसमान पर जाते हैं, फिर उसके बाद तमाम अंबिया कराम से मुलाकात होता है। तमाम अंबिया कराम से मुलाकात करने के बाद 7वें आसमान से फिर आप लामका की तरफ बढ़ते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा पे पहुंचते हैं। सिदरा पे पहुंचने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी रिसाई बस यहीं तक है, अगर मैं इससे ज्यादा बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब लामका की तरफ बढ़ रहे हैं और रफ की सवारी है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आप लामका की तरफ गए तो रब्बे तबारक व तआला के दीदार से सरफराज होते हैं। रब्बे तबारक व तआला से कलाम फरमाते हैं। आपने अपने नालैन को उतारना चाहे, जब आप अर्श आज़म पे पहुंच गए तो अपने नालैन को आप उतारना चाहते हैं, लेकिन रब्बे तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप नालैन पहन के चले आइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ रब्बे कायनात, जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अपने कलाम से सरफराज फरमाया तो वहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जब कोहे तूर पर जाते थे तो अपने नालैन को उतार देते थे, अपने नालैन को उतार करके आगे बढ़ते थे। अपने नालैन को उतारने के बाद कोहे तूर पर चढ़ते थे। ऐ रब्बे तबारक व तआला, आखिर तूने मुझे नालैन पहनने का क्यों हुक्म दिया? तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, वो मूसा थे और वो कलीम थे और तू हबीब है। कलीम और हबीब में बहुत फर्क है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ते हैं तो रब्बे तबारक व तआला से इरशाद, रब्बे तबारक व तआला की बारगाह में हम कलामी का शर्फ हासिल करते हैं। जब आप चलने लगते हैं तो रब्बे तबारक व तआला ने कहा, ऐ महबूब, मैं आपके उम्मतियों के लिए मैं तोहफा दे रहा हूँ, ले जाओ, ये 50 वक्त का नमाज है, अपने उम्मतियों को दे देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को लेकर के आते हैं। रात 6वें आसमान पर हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो जाती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब्बे तबारक व तआला की बारगाह से आ रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेरे उम्मतियों के लिए तोहफा दिया है नमाज का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितने वक्त का तोहफा दिया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 50 वक्त का। 50 वक्त का। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आपकी उम्मत कमजोर है, ये 50 वक्त का नमाज नहीं पढ़ पाएगी। जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाओ और अल्लाह तबारक
तबारक व तआला से कहो कुछ कमी कर दें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाते हैं और कहते हैं रब्बे तबारक व तआला उम्मत कमजोर है, ये 50 वक्त का नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ठीक है हबीब 5 वक्त का नमाज कम की कर दिया जाता है। गर्ज की नबी पाक 9 बार आते जाते रहे और आखिर में 45 वक्त का नमाज 5 वक्त का नमाज बचा 45 वक्त का घटा दिया गया। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज 5 वक्त का नमाज लेकर के चलने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ऐ नबी पाक मेरी बात में तब्दीली नहीं हो सकती है, तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी तो उसे 50 वक्त का सवाब दिया जाएगा। हजरात अब यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार भी पता चलता है, इसलिए कि आज कुछ लोग कहते हैं नबी पाक को कुछ इख्तियार नहीं है, नबी पाक को कुछ इख्तियार नहीं है। आओ अगर नबी पाक को कुछ इख्तियार नहीं है तो तुम 50 वक्त की नमाज पढ़ो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ही के घटाने से ये 5 वक्त का नमाज बचा है। अब जो ये कहे कि नबी पाक को किसी चीज मक्की के मालिक नहीं है तो उनसे कह देना कि तुम 50 वक्त की नमाज पढ़ो और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक के मालिको मुख्तार होने के कायल हैं, हम नबी पाक के खातिमे पैगंबरा होने के कायल हैं, इसलिए हम 5 पढ़ते हैं और हमें 50 का सवाब दिया जाता है। और अगर कोई ये कहे कि नबी पाक मालिक नहीं है तो उनसे कह देना आपकी अब तुम 50 वक्त की नमाज पढ़ो। बेशक मैं भी खत्म कर रहा हूँ हमारे इस्लाम